जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान बशीर मलिक है एंड वी आर गोइंग टू बी आई गोइंग टू बी द ट्रेनर कम कोच कम मेंटर ऑन दिस बूट कैंप सेशन। मेरा इंडस्ट्री का तकरीबन 25 एक साल का एक्सपीरियंस है। आई वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट, आई वर्क फॉर मल्टीनेशनल्स एज वेल। और पाकिस्तान में आई एम रनिंग माय ओन कंपनी बाय द नेम एलाइट कंसल्टेंट्स। ETL Online का I'm one of the founders as well। और before we actually start the boot camp, let me tell you कि इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और बहुत सारी इवेंट्स भी हैं और बहुत सारे इंशाल्लाह हमने बूट कैंप्स वगैरह प्लान किए हुए हैं। द आइडिया इज टू कनेक्ट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स विद द स्टूडेंट्स। और ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स ही हों, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और अर्ली स्टेज प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। आई कैन सी पीपल who are really senior in the industry, but still there is no age for learning, right? So again, I would encourage to spread the word and make sure that more and more people can actually benefit from uh, these boot camps. For further details on the upcoming events, you can visit our website, or I'm assuming all of you have already joined our community portal. If not, let me share my screen and I will give you a 1 minute walkthrough of our bootcamp, sorry, our portal, and then we'll start the official presentation. Okay? So I'm going to share my screen. Let me know if all of you can see the portal interface. So for those who have not joined the portal, community.etlonline.org, this is the portal. And on this portal, we have multiple spaces and collections. हाँ, जो ब्लॉकचेन डेवलपर बूट कैंप है वो आपको डेवलपर बूट कैंप्स के अंदर यहाँ पर नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव एंगेज्ड इन द चैट्स। वी विल हैव anyone and everyone who wants to ask any question about this particular boot camp, he can type in his questions here. Let us know if someone is unable to post in a question, but my request would be that you only ask question which is beneficial for others as well, right? So there are certain topics that we are going to cover inside the boot camp which will not be very advanced. So if you think that you have a question which is a bit advanced, and क्योंकि इंटेंट ये है कि हम सबको साथ लेके चलना है जिसके अंदर जूनियर भी हैं और सीनियर्स भी होंगे, तो इफ देयर इज अ क्वेश्चन which is a bit advanced and you feel like कि यार ये मेन कोर्स ऑफ द बूट कैंप से हट के है, तो you feel free to start that conversation in the course discussion and we'll try to, मैं और मेरी टीम will try to answer those questions to the best of our ability. और चूंकि ये एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, there is no one stopping anyone from within the cohort to actually engage in a conversation or start answering the question. So idea is fairly simple. It's a community platform by the community for the community. इसको कोई एक बंदा या कोई एक एंटिटी मैनेज नहीं करेगी. It's a kind of a two-way traffic between the community members. तो कोई भी there is no question which is unworthy of being asked, ठीक है? और no one is stopping anyone from answering the question to the best of their ability अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो. अच्छा, जहां पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. कोर्स मटेरियल अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो करिकुलम का ओवरव्यू और इकोसिस्टम, जिसकी हम जो फ्राइडे को आप पहला जो सेशन करेंगे उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे. सो आई हैव डिलिबरेटली केप्ट इट लाइक दिस ताकि अगेन ये कोर्स नहीं है, इट्स अ सेशन बाय सेशन डिस्कशन. तो मैं इसको सेशन बाय सेशन ही ओपन करूंगा ताकि जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ प्रोग्रेस करें, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी अवर मेन स्पेस के जहां पर पूरा का पूरा जो बूट कैंप के, आई थिंक वी हैव मोर देन 60 स्टूडेंट्स and I see a lot of students from Capital University of Science and Technology, thanks to Dr. Nadeem. Dr. Nadeem जो कि आप लोगों के शायद हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वहाँ पर वो मेरे क्लास फेलो हैं. So thanks to him for reaching out to students and asking them to attend this session. अच्छा जी. So what I was saying is कि ये स्पेस जो है ब्लॉकचेन डेवलपर बूट कैंप, ये हमारा मेन स्पेस एरिया है, बट यू फील free to sort of move around and look at other resources. This is just a portal that we have started to build
a lot of contribution that is needed and everyone is welcome to contribute. आज कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था कि जी where is the link for the event? You will always find all the links either under the events, जो कि हमारा ग्लोबल इवेंट लिस्ट है, या कोई स्पेसिफिक इवेंट अगर हो रहा है तो वो आपको उस स्पेस के अंदर, जिस तरह आज इस स्पेस के अंदर मैंने यहाँ पर चैट पे किसी ने पूछा था तो मैंने ये लिंक भेज दिया, राइट? सो try to sort of stay focused on the portal as much as you can, and you will see new things coming up, new initiatives, new events. You will have the opportunity to connect with newer mentors as well. Still an evolving effort from us, or we are looking for more people to join us as members and as mentors. Enough said about the portal. I think I'm sure that everyone is smart here. You will find your way through the portal. एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा वो ये है कि इस पोर्टल की अपनी एक ऐप भी है, माइटी नेटवर्क्स के नाम से। मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में इसका शेयर भी कर दिया है। मुताहिर, अगर आप जो इसकी ऐप है उसका लिंक इधर भी शेयर कर दें ताकि लोगों को मोबाइल ऐप के ऊपर नोटिफिकेशंस मिलते रहें, स्पेसिफिकली फॉर दिस कोहॉर्ट, क्योंकि ये जो हमारा बूट कैंप है उसका कोहॉर्ट है, ये क्लोज्ड ग्रुप होगा, तो इसके अंदर जो हमारी अनाउंसमेंट्स बना है वो थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डू आई विल स्विच ओवर टू द प्रेजेंटेशन दैट आई हैव। अगेन, जिन लोगों ने पहले प्री बूट कैंप के 3 सेशंस अटेंड किए हुए हैं, शायद उनको भी इस इंट्रोडक्टरी सेशन में कुछ नई चीज़ें सुनने को और समझने को मिल जाए, बिकॉज आई ट्राई टू व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक समरी ओवरव्यू दूंगा और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं। मुताहिर जैसे लोग जो ज़्यादा एनर्जेटिक हैं वो पूछते रहते हैं कि अच्छा यार आपने फलां टॉपिक पे बात नहीं की, आपने फलां टॉपिक पे बात नहीं की। द इंटेंट इज टू कीप एवरीवन ऑनेस्ट हियर। देखें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जिनके लिए वो कॉन्सेप्ट्स नए हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके लिए पुराने हैं। सो इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई एम नॉट कवरिंग, फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन in the portal. One more thing that I forgot to mention कि आप यहाँ पर बूट कैम्प में आपने इंट्रोडक्शन तो अपने करवाए हैं, but there is a specific channel or specific space that we have created. Nice to meet you. Feel free to put up your introductions here to the wider community. So on the portal right now we have close to 500 people. Alhamdulillah, we are growing. But इस cohort में सिर्फ 50 या 60 हैं. So to introduce yourself to the broader audience, you can put in your anything that you want to share, your personal profile, any project that you may have done, right? Or anything that you want to show off about a personal milestone that you've done, you can put it under the nice to meet you channel. And I would encourage students to sort of use this much more and more, and sort of show what they are working on and how to sort of engage with other students in the community. Again, community में फिर ये कहूँगा, it's a bi-directional traffic. It's a portal for the community by the community, right? तो इसके अंदर अगर आप community rules को एक दफा पढ़ लें, community structure को एक दफा पढ़ लें, अगेन आज के बाद बेशक पढ़ लीजिएगा, अभी पढ़ना जरूरी नहीं है, you would know कि यहाँ पर कैसे ऑपरेट करना है, what are the do's and what are the don'ts. ठीक है, so hopefully if all of you adhere to these rules and regulations, inshallah we will thrive together as a community that we want to make it. अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन पे। So चैट के अंदर मुताहिर एंड द टीम दैट इज असिस्टिंग मी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू पॉज मी, otherwise I'll probably not be looking at the chat questions too often. ठीक है, जरूर सर। जी सर। अस्का भी हैं टीम में से आज कॉल पे? एनीवेज कोई इशू नहीं है। So I'll be trusting you, Mutahir, to sort of again, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो करा दिया। Mutahir is assisting me here. He's a student at Islamic University, or he's someone that is really brilliant and helping us with shaping up this community. So hats off to Mutahir and other students who are helping with this initiative. अच्छा जी,
So I keep on getting back on this slide in every session, and if I could, I would make this a ritual to क्या करना चाहिए, एक चीज इसको बार बार रिपीट करना चाहिए, वो ये है कि ब्लॉकचेन है क्या, और दी ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब थ्री। आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, वेब थ्री वेब थ्री वेब थ्री, ये वेब थ्री है क्या, ठीक है। और ब्लॉकचेन इस पूरे के पूरे एक क्या कहना चाहिए पैराडाइम के अंदर ब्लॉकचेन की क्या हैसियत है। तो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी ये प्री बूट कैंप में बताया था कि यार जब आप वेब थ्री के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ते हो, यू गेट टू नो लॉट अबाउट थिंग्स लाइक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का भी नाम सुनते हैं, आप मेटावर्सेस का नाम सुनते हैं, सिमेंटिक वेब का नाम सुनते हैं, और आप ये सुनते हैं कि यार इट्स वेब 3.0 इज सपोज टू बी ऑमनी प्रेजेंट, राइट। बट इन सारी चीजों को एक तरफ रखते हुए, इफ आई वाज टू फोकस ऑन जस्ट टू फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, कि ये सारी की सारी जो वेब थ्री की हाइप है वो है किस बारे में, तो वो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है डिसेंट्रलाइजेशन और एक है सिक्योरिटी। और हमने पिछले प्री बूट कैंप्स के अंदर थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस किया था, आज भी मैं थोड़ा सा करूंगा। बट जो ब्लॉकचेन्स हैं वो इवॉल्व हुई हैं, एंड आई एम ट्राइंग टू यूज द करेक्ट वर्ड हियर, ब्लॉकचेन इवॉल्व हुई है फ्रॉम अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। शुरू में पीयर टू पीयर नेटवर्क्स होते थे, जैसे टॉरेंट्स वगैरह हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को लेके इवॉल्व किया गया है इनटू समथिंग विच इनेबल्स डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिक्योरिटी, ठीक है। मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर किसी को उसको बहुत ज़्यादा समझने की इंटरेस्ट है तो हमारी प्रीवियस जो 3 सेशंस हैं वो सुन लें। Sir, right now you're on mute. I think sir has accidentally muted himself. हेलो, हाँ मुताहिर, यू हैव टू मेक मी अ को होस्ट एज वेल यार, सो दैट इफ आई एक्सीडेंटली म्यूट माई सेल्फ अगेन आई डोंट हैव टू रिलाई ऑन यू, ठीक है। जी सर। अच्छा, वो असल में मेरे ऑफिस में लड़का आ गया था, तो that's why I had to mute myself. Anyways, so मैं I will not go into the detail, I will move on. डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर हमने काफी बात की, लेकिन अगर की टेनेंट मैं बताऊं कि इट्स द आइडिया इज एन इंटरनेट व्हिच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय मेनी, व्हिच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन। इलन मस्क ट्विटर को कंट्रोल करता है, मार्क जकरबर्ग फेसबुक को कंट्रोल करता है, एंड वी सी अ लॉट ऑफ प्राइवेसी एंड डेटा related problems there, right? So the core tenet about the core philosophy of decentralization is that it should be an internet which is not controlled by anyone, uh, and no one can switch it off. की एनेबलर्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वेब, ये हमने डिस्कस किया था कि ब्लॉकचेन की जो माँ है, या वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन केम इन, इट बेसिकली केम इन फ्रॉम पीयर टू पीयर नेटवर्क, जो कि काफी पुराना एक कॉन्सेप्ट है। एंड देन पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर हमने जिसे कहते हैं ना, उस हांडी के ऊपर जो तड़का लगाया वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर से लगाया, एंड दैट्स हाउ द ब्लॉकचेन्स इवॉल्व। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल, ये सारी इंफॉर्मेशन नेट पे भी अवेलेबल है और हमारे पिछले सेशंस में हमने डिस्कस भी की हुई है। जो सेकंड एस्पेक्ट है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर हमने अगर आप लोग वो करें, देखें कि आप लोगों ने पढ़ा होगा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी, कि यार क्रिप्टोग्राफी पब्लिक की और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ा होगा, डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, देयर इज नथिंग न्यू हियर। लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी, तो अगर आप कोई भी डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल पे है, एप्पल पे है, या इवन पेपैल है, ये सारे के सारे बैकएंड पर पब्लिक और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी या इस तरह के हैश फंक्शंस वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
इस सारे कॉन्सेप्ट को उठाकर हमने जो सेकंड टैलेंट था, यानी कि एक टैलेंट था या एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था सिक्योरिटी, दूसरा था डिसेंट्रलाइजेशन। जब इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन को मिक्स किया तो फिर हमारे सामने एक नई ब्रीड ऑफ डिजिटल वॉलेट्स आ गई, जिसे आपने नाम सुना होगा, कॉइनबेस, मेटामास्क। ये वो सारे वॉलेट्स हैं जो कि ब्लॉकचेन वॉलेट्स भी कहलाए जाते हैं। ठीक है। सो अगेन व्हाट आई वांट टू फोकस हियर इज कि अभी तक हम अपनी मेन वेब 3 की पैराडाइम के अंदर दो ही चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी। आज हम तीसरे का भी जिक्र करेंगे जो कि है स्केलेबिलिटी, लेकिन अभी उसके ऊपर थोड़ी देर बाद में आते हैं। अगेन सम ऑफ यू हु आर न्यू मे बी वंडरिंग कि मैं इतना तेज तेज क्यों चल रहा हूँ। वो इसलिए चल रहा हूँ कि ऑल ऑफ दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड प्रीवियसली। ये जो हमारे पिछले 3 सेशंस हुए हैं इसके अंदर ये सारा कुछ डिस्कस हुआ है। ठीक है जी। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। वो ये है कि जब मैंने कहा ना कि जो हमारे डिजिटल वॉलेट्स हैं वो सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन को कंबाइन करते हैं, तो समझने की बात ये है कि वॉलेट हमें ऑफर क्या कर रहा है। सो ऑन वन साइड ये बेसिकली पीयर टू पीयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा है, और इसके अंदर डिजिटल करेंसी होल्डिंग भी आप कर सकते हैं, और ये हम देखेंगे जब हम मेटामास्क वगैरह की डिस्कशन करेंगे। और दूसरी तरफ ये आपको आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी कि यू कैन यूज योर डिजिटल वॉलेट्स एज योर आइडेंटिटी। आपने अक्सर देखा होगा यू कैन डू परचेज यूजिंग योर एप्पल पे या एंड्रॉयड पे या इवन पेपैल। वहाँ पर आपका जो वॉलेट है इफेक्टिवली एक्ट्स एज योर आइडेंटिटी एज वेल। और इसी तरीके से जो वॉलेट्स के अंदर डेटा है आपका या आइडेंटिटी है उसकी ओनरशिप भी सिक्योर करता है। अच्छा जी, मेटामास्क के हवाले से हमने कहा था कि ये नॉन कस्टोडियल सॉफ्टवेयर वॉलेट है जो कि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी पे चलता है। ये अगेन ये हम एक्चुअल बूट कैंप जब स्टार्ट होगा उसमें मेटामास्क इंस्टॉल भी करेंगे और उसके साथ थोड़ा सा खेलेंगे भी, और फिर हमारा पहले ही सेशन में इंशाल्लाह विल ट्राई टू मेक श्योर कि हम कोई एक आधा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट करें। बट अगेन एनीवन वांट्स टू सॉर्ट ऑफ प्ले अराउंड विद द आइडिया ऑफ अ डिजिटल वॉलेट तो metamask.io से जाके उसको डाउनलोड इंस्टॉल करके तो देख भी सकता है। अच्छा, फिर हमने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था कि जी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, और हमने ये भी देखा था कि मेटामास्क जैसे वॉलेट इनको हायरार्किकल डिटर्मिनिस्टिक वॉलेट क्यों कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपके एक सीड फ्रेज है जिससे आपकी एक मास्टर की अनलॉक हो रही है और चाइल्ड की अनलॉक हो रही है, तो इसका मतलब ये था कि अगर आपकी जो सीड है या जो आपकी मास्टर की है वो अगर लूज हो जाती है तो आपकी तमाम के तमाम वॉलेट के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। हम इंशाल्लाह जब फ्राइडे को बूट कैंप स्टार्ट होगा ये भी देखेंगे डिटेल से कि एक वॉलेट और एक अकाउंट में क्या फ़र्क है, बिकॉज ये भी काफ़ी कंफ्यूजन होती है लोगों में। But for now, for you guys to prepare yourself for the actual boot camp, hierarchical deterministic wallets इसको भी पढ़ लीजिएगा, metamask.io पर जाके metamask को भी देख लीजिएगा। ठीक है। Again, I'm not going to recommend any specific course material because I'm sure that all of you are very intelligent. But what I'm saying is कि concepts जहाँ से भी आपको मिले, कोर्सेरा से मिले, Udemy से मिले, कहीं से भी मिले, आप इन concepts को जरूर देख लें ताकि जब बूट कैंप के अंदर आपको फॉलो अप करने में आसानी हो। मैंने आपको ये भी उस दिन दिखाया था कि यू यू कैन यूज मल्टीपल अकाउंट्स इन मेटामास्क। आज अभी इस पे कवर करने का टाइम नहीं है। लास्ट टाइम हमने भी कहा था कि ब्लॉकचेन कैन मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए ब्लॉकचेन बिटकॉइन या बिटकॉइन की करेंसी है, आज हम उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ब्लॉकचेन एज अ पैराडाइम शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ टू डेवलप सिस्टम्स है। तो आज का थोड़ा सा मेरा फोकस उस चीज़ के ऊपर होगा ताकि मैं चाहता हूँ कि आप जब कोई रीडिंग मटेरियल पढ़ो, राइट, तो वो जो की एस्पेक्ट्स जिनकी जिनकी तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूँ, यू शुड बी फोकस्ड ऑन दोज की एस्पेक्ट्स। अदरवाइज बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकती है, बट आई वांट यू गाइस टू बी फोकस्ड। सो व्हाट आई एम सेइंग इज the concept of blockchain means different things for different people, right? At this point in time, Bitcoin भी एक blockchain है, Ethereum भी एक blockchain है, right? फर्क क्या है?
राइट। बिटकॉइन जो है वो एक करेंसी स्पेसिफिक ब्लॉकचेन है। वो उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी है, ठीक है, लेकिन वो प्रोग्रामेबल नहीं है। उसके लिए इथेरियम है, एंड वी विल कवर दैट इंशाल्लाह इन आवर बूट कैंप कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन वर्सेस अ नॉन प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन, ठीक है। अच्छा जी, जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करना चाहता था वो है द ब्लॉकचेन ट्राइलेमा। um, before I discuss that, if there is any question, then I'll take a pause and I'll try to answer that question, क्योंकि ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको इन चीज़ों का आइडिया अभी हो जाए, ताकि अगेन बूट कैंप के अंदर हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। थ्योरेटिकली मैं आपको एक डायरेक्शन दे दूँ ताकि आप उसको फिर फॉलो अलॉन्ग करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो उससे पूछें, ठीक है। सो आई विल टेक क्वेश्चंस। मुताहिर, कोई क्वेश्चन है? No, sir. I think so far we're good. तो हाँ, एक बच्चे ने पूछा जी, आर द रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीवियस 3 सेशंस अवेलेबल? हाँ, वो यूट्यूब पे भी हैं, और अगर आप उधर जाएं, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। जो बूट कैम्प का होम पेज है ना, ठीक है, बूट कैम्प का जो होम पेज है उसके ऊपर अ, एक सेक्शन है जिसके अंदर तीनों रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल, ठीक है। Sir, someone is asking, will the presentation be made available? अच्छा, सो आई विल डिलिबरेटली नॉट मेक द रेफरेंसेस और प्रेजेंटेशन अवेलेबल, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग, अगेन, दिस इज नॉट अ कोर्स। मैं ये नहीं चाहता कि आप एक प्रेजेंटेशन उठाएं और उसके अंदर से जो मैंने रेफरेंसेस दिए हुए हैं सिर्फ उनको देखें। कीप योर माइंड ओपन। आप यूडेमी, कोर्सेरा, डिफरेंट लिंक्डइन लर्निंग पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट अवेलेबल है जहां पर आपको प्रेजेंटेशन इससे अच्छी मिल जाए। व्हाट यू हैव टू रियलाइज कि द इंटेंट ऑफ दिस बूट कैंप इज कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर, ऑब्वियसली 12 वीक्स का तो 3 महीने तो लग ही जाएंगे तकरीबन, आप जो भी कोर्स फॉलो करें या जो भी कंटेंट फॉलो करें उसके अंदर से अगर कोई क्वेश्चन है वो जरूर पूछें, ठीक है। मैं कोई टेम्पलेट नहीं देना चाह रहा। द आइडिया इज कि अगर आपको कोई एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया आप उसके बारे में पूछे, किसी दूसरे को कोई दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो वो उसके बारे में पूछे। एक और चीज जो मैं अपने इसमें स्पेस के अंदर बूट कैंप के इंट्रोडक्शन में लिख भी दिया हुआ है, बट आई वुड आल्सो फोकस हियर इज वेल, कि आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे फोकस करना होगा, एंड पीपल हु एक्चुअली डू अ प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ दिस बूट कैंप विल आल्सो बी गिवन अ सर्टिफिकेट इन द फॉर्म ऑफ एन एनएफटी। आपने एनएफटीज का नाम सुना होगा। मैंने भी जब ये बूट कैंप किया था, मैंने कंसेंसस के थ्रू किया था, प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकचेन कंसल्टिंग कंपनी, उनका बूट कैंप अटेंड किया था ऐसे 3 साल पहले। सो व्हाट दे डिड वाज कि मुझे पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के ऊपर सर्टिफिकेट एज एन एनएफटी दिया गया। उसका फायदा ये है कि दैट इज बेसिकली योर बैच, योर स्टिकर दैट यू कैन टेक एनीवेयर। इट विल बी बाउंड टू योर ब्लॉकचेन वॉलेट। और अगेन, फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट अ ब्लॉकचेन वॉलेट इज, या उनका अपना ब्लॉकचेन वॉलेट नहीं बनाया, तो वो सारा हम बनाएंगे। माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि बिफोर द बूट कैम्प एक्चुअली स्टार्ट्स, आप लोग metamask.io पे जाएं और अपने अपने जो है क्रिप्टो वॉलेट्स इंस्टॉल कर लें। बड़ा आसान है, इट गेट्स इंस्टॉल्ड एज अ क्रोम एक्सटेंशन। क्रोम पे भी आ जाता है, फायरफॉक्स पे भी आ जाता है। देयर इज अनदर ब्राउजर दैट आई वेरी फ्रीक्वेंटली यूज, दैट्स कॉल्ड ब्रेव ब्राउजर। वो बड़ा सिक्योर है, उस पे भी इंस्टॉल हो जाता है, राइट। सो ट्राई टू प्ले अराउंड विद इट। लेकिन अगर किसी को टाइम नहीं भी मिलता तो कोई इशू नहीं है। जब हम
फ्राइडे को एक्चुअल बूट कैंप स्टार्ट करेंगे तो I'll show you around कि how to use again coming back to the session. So So there are two more questions. जी जी. So someone is asking कि projects मिलेंगे hands-on practice के लिए या task मिलेंगे? So the idea is that any task that you do should result or should somehow be associated with a capstone project. ठीक है. um, अगर आप होम पेज पे जाएंगे तो जो कोर्स का स्ट्रक्चर है उसको अगर होम पेज पे जाते हैं इस स्पेस की. लेट मी शेयर यार, मैं एक सेकंड. आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी माय स्क्रीन. होम पेज पे ना यहाँ पर ये बूट कैंप का स्ट्रक्चर है. ठीक है. रीड थ्रू द गाइडलाइंस हियर. द आइडिया इज के these are the type of projects. इनके ब्लॉकचेन्स पे हर किस्म की एप्लीकेशन नहीं बनानी चाहिए और ना ही बन सकती है. राइट. सो यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं और ऑल ऑफ यू वुड बी रिक्वायर्ड कि आप जल्द से जल्द अपनी डोमेन आइडेंटिफाई करें ताकि आपके साथ मिलकर हम आपकी जितनी भी प्रोग्रेस है थ्रू द बूट कैम्प. ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट है जिसपे सारे काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं होगा. ठीक है. ये जो 2 घंटे के सेशन है वेडनेसडे और फ्राइडे, ये सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को कवर करने के लिए है कि जिनके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा यार, आपने अगर टोकन क्रिएट करना है तो उसको इस तरीके से कोड लिखना है, लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है तो ऐसे करनी है, ये सारी चीजें. बट यू वुड बी रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन दीज प्रोजेक्ट्स योरसेल्फ. और उनके अंदर का आपको प्रॉब्लम आती है, किसी को भी आती है, तो देर इज दिस पोर्टल. आप वहां पर आए, अपना इशू डिस्कस करें एंड मे बी वी कुड डू सेपरेट सेशंस एज वेल. लाइक जरूरी नहीं है कि इन 2 घंटों के अलावा आपको किसी किस्म की असिस्टेंस नहीं मिलेगी. द टीम इज हियर. आप कहीं भी कभी भी जाके इधर कोर्स डिस्कशन के अंदर या चैट के अंदर अपना कोई इशू लिखेंगे, विल ट्राई टू सॉर्ट ऑफ help you out. But at the end of the day, make sure that you've conceived a capstone project for the boot camp, जिसके एंड पर ना सिर्फ ये कि आप प्रोजेक्ट चलता हुआ दिखाएंगे, बल्कि उसकी गिटहब रिपोजिटरी के अंदर उसकी चेंज हिस्ट्री वगैरह को भी रिव्यू किया जाएगा बिफोर वी एक्चुअली अवार्ड यू अ सर्टिफिकेट. ठीक है. Any requirements or prerequisites for the hands-on? कोडिंग यार. आई मीन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्किल बिल्डिंग बूट कैम्प. तो आपने कोडिंग करनी है. और चूंकि ज्यादातर जो ब्लॉकचेन पे काम या तो वेब एप्स पे हो रहा है, जिसको डिसेंट्रलाइज्ड एप्स कहते हैं, या मोबाइल एप्स पे हो रहा है, तो आपके पास कोई ना कोई वो स्किल होनी चाहिए जिसके थ्रू आप वेब वेब फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में. या अगर आपने मोबाइल एप्स वगैरह पे आपकी एक्सपीरियंस है तो वो भी एक ऑप्शन है. बट देन अगेन यू हैव टू सिलेक्ट द एरिया ऑफ योर ओन कन्वीनियंस. बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी कोडिंग. कोडिंग के बगैर ये बूट कैम्प आप कंप्लीट नहीं कर सकते. सो सेकंड क्वेश्चन क्या था जी? So second question भी हो गया. We're done for now, I think. अच्छा चलें. सो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी पहले 3 सेशन में कवर की थी, लेकिन कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जो कि नहीं किए थे. आज डिस्कस करने का मकसद ये है कि आज डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों की जो लर्निंग को ना कोई डायरेक्शन मिल जाए. ठीक है. आई डोंट वांट टू नॉट डिस्कस इट, ताकि मतलब आप लोग फिर बाद में कंफ्यूज ना हो. ठीक है. गिव मी 1 सेकेंड, एक सेकेंड ठहरिए. Sorry again, I accidentally muted myself.
without realizing that I am not the host again. So जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द ब्लॉकचेन ट्रायलेमा? मैंने अभी तक इन दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपके साथ बात की है। मैंने कहा कि यार ब्लॉकचेन में जो कुछ भी हो रहा है ना, या ब्लॉकचेन्स के जो एवोल्यूशन हुई है, वो दो की प्रिंसिपल्स के साथ हुई है। एक है सिक्योरिटी और एक है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सिक्योरिटी पे भी हमने थोड़ी सी बहुत बात की है, डिसेंट्रलाइजेशन पे भी हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी। लेकिन एक जो प्रॉब्लम किसी भी टेक्नोलॉजी को मेन स्ट्रीम एडॉप्शन में आता है, वो है स्केलेबिलिटी। एंड स्केलेबिलिटी मीनिंग कि यार जो भी चीज है उसकी एडॉप्शन वाइड स्प्रेड हो। लाइक अगर दुनिया में 5 मिलियन इंसान है, 5 बिलियन है या 7 बिलियन है, 8 बिलियन है, फॉर एनी प्लेटफॉर्म, फॉर एनी सोल्यूशन टू बी स्केलेबल, राइट, हम ये कहते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा लोग वो इस्तेमाल करें। ब्लॉकचेन्स के केस में ऐसा नहीं है। पिछले कुछ 10-12 साल हो गए हैं कि बिटकॉइन भी है, और इथेरियम का भी आपने नाम सुना होगा, और उसकी एक नीच फॉलोइंग तो है, काम भी बड़ा हो रहा है, लेकिन वो टिकटॉक की तरह फेमस नहीं है, वो यूट्यूब की तरह स्केलेबल नहीं है, राइट। यानी कि वो ऑब्वियसली वो कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर नॉट अ टेक्नोलॉजी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इवन दो ब्लॉकचेन के ऊपर या वेब 3.0 के ऊपर को 10-15 साल हो गए हैं बातें करते हुए, लेकिन उसको वो क्रिटिकल मैस नहीं मिल सका, उसकी स्केलेबिलिटी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकी कि हम कहें कि यार एवरीवन इज यूजिंग ब्लॉकचेन। ऐसा नहीं है। A lot of people are familiar with Bitcoin, but not everyone is using Bitcoin. अच्छा, उसमें बिटकॉइन में स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन का प्रॉब्लम। यानी कि सेंट्रल बैंक्स या जो गवर्नमेंट्स हैं वो ये नहीं चाहती कि बिटकॉइन या ऐसी डिजिटल करेंसी जो है वो मैस अडॉप्शन में है कि उनका काम बंद हो जाए, राइट। सो इन बिटकॉइंस केस डिसेंट्रलाइजेशन इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम जो कि उसकी मैस अडॉप्शन को रोक रहा है। बट इन इन इथेरियम्स केस, चूंकि इथेरियम एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है, उधर डिसेंट्रलाइजेशन से ज्यादा स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये ब्लॉकचेन ट्रायलेमा है क्या, और ये क्यों डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये जो सारे जो इनिशिएटिव्स होते हैं, ये कोई ना कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैंने जैसे कहा कि ब्लॉकचेन क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। सो ब्लॉकचेन एज एन आइडिया तो बिटकॉइन के एडवेंट से भी पहले था, लाइक लेट 90s से, बल्कि शायद अर्ली 90s से लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया था कि यार ये पीयर टू पीयर नेटवर्क्स होने चाहिए, और कोई ब्लॉक, मतलब इस तरह का कोई डिसेंट्रलाइज्ड किस्म का नेटवर्क होना चाहिए थी। बट उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो सबसे पहले बिटकॉइन या बीटीसी ने करके दी। यानी कि बिटकॉइन के फाउंडर ने ये बता दिया कि यू कैन एक्चुअली डेवलप अ डिजिटल करेंसी ऑन टॉप ऑफ अ ब्लॉकचेन। उससे पहले सिर्फ ब्लॉकचेन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही था। जब करेंसी बनी और करेंसी की आहिस्ता 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 यूजेज स्टार्ट हुई, तो फिर लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, ब्लॉकचेन तो हैं, ये तो बड़े काम की चीज़ है। तो जूं जूं कि ब्लॉकचेन का ये कॉन्सेप्ट बढ़ता गया, पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार तीन में से ना एक, तीन में से आप हमेशा दो चीजें हासिल कर सकते हो, तीसरी तीसरी नहीं कर सकते। सो अब जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, ठीक है, उधर आपको या तो ये मिलेगा, यानी कि आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, ये मैं डबल टिक से मार्क कर देता हूँ, या ये दोनों मिलेंगी, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। या मैं अगर यूं कहूँ कि ये दोनों मिलेंगी, सिक्योरिटी मिलेगी, स्केलेबिलिटी मिलेगी, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि मैं कहूँ कि स्केलेबिलिटी मिल जाएगी और डिसेंट्रलाइजेशन मिल जाएगी, ठीक है,
सॉरी, स्केलेबिलिटी मिल जाएगी, डिसेंट्रलाइजेशन मिल जाएगी, सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। ठीक है। तो द ट्रिलेमा इज, अगेन प्योरली फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट परस्पेक्टिव, इज कि यार जब आप कोई एक्चुअल यूज केस, कोई एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ब्लॉकचेन से, तो इन तीनों में से किसी एक पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब वो हम क्यों कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसका रीजन इज हिडन बिहाइंड द वेरी कॉन्सेप्ट कि यार ब्लॉकचेन बननी कैसी है। ब्लॉकचेन बनी है पीयर टू पीयर नेटवर्क से। ठीक है। और पीयर टू पीयर नेटवर्क्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो मैंने अगेन पहले भी समझाया था। आई वुड अगेन ट्राई टू डू वाइट बोर्ड हेयर। Let me know if you guys can see my screen. The way a peer-to-peer network works is कि आपके पास ना कंप्यूटर्स, ये डब्बे समझ लें कंप्यूटर्स हैं। I hope you guys can see my screen. So anyone can communicate with anyone. ठीक है। टॉरेंट्स में भी ऐसे ही होता है। बट अगर आप देखें कि अगर इंफॉर्मेशन ए, यानी कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है जिसको मैं कहता हूँ ए ने अगर प्रोपेगेट होना है ना, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, राइट, और इधर भी, राइट, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। ये लेट सपोज आपका ये वाला जो सिस्टम है ये पाकिस्तान में है, ये हो सकता है अमेरिका में पड़ा हो, लेटेंसी इश्यूज हैं व्हाट नॉट, राइट। और हमने एक और चीज ये देखी थी कि यार फॉर द नेटवर्क टू बी स्टेबल एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, ये जो प्रोपेगेशन है ऑफ ए नीड्स टू हैपन इन मोर देन 50%। 50% से ज्यादा नोड्स पर अगर ये प्रोपेगेट हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहेंगे कि यार वो चेंज आपकी नेटवर्क पे वेरीफाई हो गई है। ये भी तो हो सकता है कि उसी वक्त, जिस वक्त नेटवर्क पे मैं ए को लिख रहा हूँ, ठीक है, यहां पर बी आ गया एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट, और वो भी अपनी चेंज को प्रोपेगेट करने लगा। ठीक है। तो देर हैज टू बी अ मैकेनिज्म कि यार नेटवर्क जो है वो ए की बात माने या बी की बात माने। ठीक है। तो बेस्ड अपॉन दिस कंस्ट्रेंट, ये प्योरली स्केलेबिलिटी से रिलेटेड है। एक स्केलेबिलिटी और दूसरी सिक्योरिटी भी। यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि नेटवर्क पर ए डोमिनेंट है या बी, इट्स अ सिक्योरिटी इशू एज वेल। 10 सेकंड दें, अजान हो रही है, फिर उतनी देर में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज टाइप दें। जी सर, देयर इज अ क्वेश्चन ओवर हियर कि पहले सॉलिडिटी सीखनी चाहिए या जावास्क्रिप्ट।
जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, अजान थी। तो आई वाज गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस। ज़्यादातर बच्चों ने ये पूछा कि जी जावास्क्रिप्ट या सॉलिडिटी। देखिए, जावास्क्रिप्ट भी करनी पड़नी है, सॉलिडिटी भी करनी पड़नी है। एक सलाना के हवाले से क्वेश्चन था। कॉन्सेप्चुअली बोथ आर द सेम। सोलाना इज लेस डिसेंट्रलाइज्ड। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सोलाना में, और अगर आज मैं पूछूं, मैंने एक बताया आपको जी बिटकॉइन में और इसमें क्या फ़र्क है। सॉरी, बिटकॉइन में और इथेरियम में क्या फ़र्क है। इथेरियम वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन, ठीक है। किसी ने पूछा सोलाना, सो ऑन सोलाना दे हैड टू एक्चुअली sacrifice decentralization टू हैव मोर स्केलेबिलिटी, लाइक उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। और वो क्यों है, क्योंकि इट इज लेस डिसेंट्रलाइज्ड। और वही मेरा अगला अगला टॉपिक था कि इमेजिन दिस प्रॉब्लम, यानी कि एवरीवन टॉकिंग टू एवरीवन at a global scale, millions of computers, millions of nodes were trying to interact with each other. तो ये बहुत बड़ा स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम, राइट। किसकी बात पहले मानी जाए, किसकी बात बाद में मानी जाए। और अगर लेट सपोज बी एक दफा कोशिश करता है, लेकिन ए पहले पहुंच जाता है, अपनी बात रिकॉर्ड करवा लेता है, बी दोबारा कोशिश करता है, उतनी देर में को सी आ जाता है, ठीक है, और वो अपनी बात प्रोपेगेट कर देता है। तो ये बी बेचारा कितनी देर तक अपना जो पैगाम है या जो अपना मैसेज है पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा। सो ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एट अ ग्लोबल स्केल, ठीक है। तो उसको फिर सुलाना ने क्या किया, उसने कहा कि यार हम ऐसा करेंगे कि हम कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं करते। हम ऐसा करते हैं कि ये नेटवर्क है ना मेरा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, बीच में ना कुछ अपने बंदे बिठा देते हैं। और इमेजिन ये ग्लोबल स्केल पे हो रहा है। नाउ द नेटवर्क इज स्टिल डिसेंट्रलाइज्ड, फेयरली डिसेंट्रलाइज्ड, लेकिन लोगों ने अपनी बात, ए ने अपनी बात पहुंचाने के लिए, ऑल इट हैज टू डू इज टू रीच द नियरेस्ट वैलिडेटर। अगेन, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि आपने क्या किया, थोड़ी सी लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन सिस्टम में ले आए। पहले हम ये कह रहे थे कि ये जिस तरह मैं अभी रेड कह रहा हूँ ना, पहले ये हो रहा था कि एक नोड दूसरे नोड से डायरेक्ट बात कर रही थी, ठीक है। अब ये नहीं है। अब एक नोड एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम किसी ना किसी एक सेंट्रल वैलिडेटर से बात। इसका मतलब ये हुआ कि ट्विटर डिसेंट्रलाइज्ड अगर कभी हुआ, इस मॉडल से होगा, तो इलान मस्क क्या करेगा, अपने बंदे हर मुल्क में बिठा देगा। अपनी कंपनी की ब्रांचेस खोल दी है, उसने कहा यार ऐसा करो कि सारी दुनिया की ट्रैफिक अमेरिका में आने से बेहतर ये है कि मैं अपने बंदे बिठा देता हूँ। दैट्स हाउ आई वुड इंश्योर कि यार आप लोगों को रिस्पॉन्स टाइम पाकिस्तान वालों को जल्दी मिले, इंडिया वालों को जल्दी मिले, फिलिपाइन वालों को जल्दी मिले। बट देन दैट वायोलेट्स द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। हमने तो कहा था शुरू में कि यार एक ऐसा वेब के जिसको कोई भी कंट्रोल ना करे, ठीक है। सो सोलाना के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, और विच एक्चुअली रिजल्टेड इन इट्स डाउनफॉल, कि उन्होंने जब डिसेंट्रलाइजेशन पर कॉम्प्रोमाइज किया, इस पे कॉम्प्रोमाइज किया, ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज उनको इधर भी करना पड़ गया। इस वजह से, आई होप यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन, जब उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन पे कॉम्प्रोमाइज किया, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी पे किया टू इंक्रीज स्केलेबिलिटी, तो वो दे आर मोर प्रोन टू हैकिंग अटेम्प्ट्स। और अक्सर औकात सोलाना का पिछले दिनों जो डाउनफॉल आया था वो इस वजह से आया था, बिकॉज उनके ऊपर ना एक बहुत बड़ा उनके सिस्टम हैक हुआ, राइट। सो अगेन व्हेन आई टॉक अबाउट द ट्रिलेमा, जब आप किसी एक चीज को बहुत ज्यादा वेटेज देंगे, तो द नेचर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी या दिस पैराडाइम इज कि अगर आप बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो सिक्योरिटी या डिसेंट्रलाइजेशन में से कोई एक आप कॉम्प्रोमाइज होगा। और अगर बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो फिर स्केलेबल नहीं हो सकता। स्केलेबल से मुराद यही है कि फॉर जब हम ये कहते थे ना कि इथेरियम के ऊपर, जब आप देखेंगे इथेरियम के ऊपर एक ट्रांजैक्शन टेक्स लाइक 15 सेकेंड्स टू प्रोपोगेट। नाउ इमेजिन आप एक बैंकिंग की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने मोबाइल से कुछ फंड्स ट्रांसफर कर रहे हैं,
15 सेकंड के बाद आपको पता लगता है कि नहीं यार, आपकी यहाँ तो रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है या रिजेक्ट हो गई, बिकॉज चांसेस ऑफ रिजेक्शन आर आल्सो देयर, बिकॉज ये होगा कि 15 सेकंड के बाद आपको पता लगेगा कि ए या बी में से किसको नेटवर्क ने एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि हमने क्राइटेरिया ये बताया था कि नेटवर्क के अंदर एक्सेप्टेंस, जब तक 50% से ज्यादा नोड्स किसी एक मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, नेटवर्क पे वो प्रोपेगेट नहीं होगा, राइट? तो इन द वर्ल्ड ऑफ, क्या कहना चाहिए, फाइनेंस, इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, ये 20 से 25 सेकंड का जो डिले है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा, इससे बिजनेसेस रुक सकते हैं, क्योंकि आज तो आप फटाफट ट्रांजैक्शंस करने के आदी हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द ट्रिलेमा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपने दुनिया का कोई भी सिस्टम जो है वो बनाना है तो ब्लॉकचेन पे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो लिस्ट मैंने दी हुई है मेन पेज के ऊपर, वो एक क्यूरेटेड लिस्ट है ऑफ ऑल द पोटेंशियल यूज केसेस के जहां पर आप ब्लॉकचेन्स लगा सकते हैं। और उसके अंदर जो की 2 से 3 चीजें हैं, वो ये है कि आपको ब्लॉकचेन उस जगह पर इस्तेमाल करनी है जहां पर आपको इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी से गरज हो। सिक्योरिटी से गरज से मुराद ये है कि जब मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था, कि मैं अभी भी ड्रॉ कर देता हूँ, असेंशली एक ब्लॉक ऑफ डेटा है विच इज लिंक टू दी, सॉरी, ये उल्टा है इस तरह। इसको ब्लॉकचेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ ली हुई है, इसको सिंपल प्रोग्रामिंग की टर्म्स में लिंक लिस्ट कहते हैं, ठीक है। सो एसेंशियली एक लिंक लिस्ट है, बट एट अ ग्लोबल स्केल, एट अ ग्लोबल, उसका जिसे कहते हैं फुटप्रिंट है, और डिसेंट्रलाइज्ड है और डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हर नोड पर ये लिंक लिस्ट कॉपी हुई होती है। और इसके अंदर जो मेन सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है वो ये है कि जब इस पे अगर ए पड़ा हुआ है और इस पे बी पड़ा हुआ है, इस पे सी और इस पे डी, अगर, तो कोई बंदा जाकर अगर ए को A1 कर देगा तो इसका हैश चेंज हो जाएगा। ये हमने सारा डिस्कस किया है पिछले सेट में। जब इसका हैश चेंज होगा तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंटर पड़ा हुआ है ना लिंक लिस्ट का, ये इनवैलिडेट हो जाएगा। जब ये इनवैलिडेट हो जाएगा तो ये खुद इनवैलिडेट हो जाएगा। इसका मतलब है ये इनवैलिडेट हो गया, ये इसका मतलब है ये इनवैलिडेट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉकचेन के अंदर जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है इन प्लेस यूजिंग क्रिप्टोग्राफी एंड हैशिंग इंश्योर्स कि आपका डेटा हमेशा सिक्योर रहेगा। आप खुद उसको मॉडिफाई करेंगे तो करेंगे, कोई आपके डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता, एक चीज। और दूसरी चीज ट्रेसेबिलिटी, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो हर किसी को विजिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि डेटा विजिबल है, मैं ये कह रहा हूं कि ट्रांजैक्शन विजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आज अगर आज बैठ के मुताहिर को अपने मोबाइल से पैसे भेजता हूँ, ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन 2 बंदों को, 3 बंदों को विजिबल है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये मैं हूँ, ठीक है, ये मुताहिर है और मैंने इसको पैसे भेजे, ठीक है, तो दरमियान में बैंक बैठा हुआ है, इन 3 बंदों को इस ट्रांजैक्शन का पता है, ठीक है। ये है मी, ये है मुताहिर। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर मैं अगर मुताहिर को पैसे भेज रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन, तो वो दुनिया में कोई भी बंदा उसको ना सिर्फ देख सकता है बल्कि वेरीफाई भी कर सकता है। सो प्राइवेसी ऑफ डेटा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। सो ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है इसके अंदर मुताहिर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक नहीं किया जा रहा, सिर्फ ये बताया जा रहा कि इरफान ने मुताहिर को 100 रुपया दिया, 100 PKR। ये इंफॉर्मेशन इन एन इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल वे में होगी। और एक और कॉन्सेप्ट जिसको आप पढ़ लीजिएगा बूट कैंप स्टार्ट होने से पहले, वो है ब्लॉक एक्सप्लोरर। ईथर स्कैन का आपने नाम सुना होगा। ईथर स्कैन
पर जाके आप देखें, ब्लॉक एक्सप्लोरर यही काम करते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस किसी भी नेटवर्क के ऊपर हैं, वो इथेरियम है, वो बिटकॉइन है, जिस पे भी है, वो उस ब्लॉकचेन का जो ब्लॉक एक्सप्लोरर है उसके ऊपर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपको एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम नजर आ रही होती है। ठीक है, मैं लेट मी ओपन अप। सो मैं, वो कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग, मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली एम आई टॉकिंग अबाउट हियर, साइड पे कैसे करना है। सर देयर आर फ्यू क्वेश्चंस लाइनिंग अप। हाँ, एक सेकंड, आप करें, पूछें जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने पूछा कि कोई रोड मैप हमें डिस्कस हो सकता है, अ गाइडलाइन जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और वर्कफ्लो मैंने, गिवन हो। जी जी, मैंने वो उसमें डाला हुआ है। ठीक है, उसमें आप, मैं, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि ट्राई टू फोकस ऑन द बिजनेस प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग। देखें, इस बूट कैंप का या इस प्लेटफॉर्म का और आपके ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो मेन फर्क है वो ये है कि मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पाइथन पढ़ें। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जावास्क्रिप्ट पढ़ें। मैं ये आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सॉलिडिटी पढ़ें। ठीक है, एक बच्चे ने सवाल पूछा कि हम क्या सुलाना भी करेंगे। इट इज नॉट, द टूल इज नेवर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको अपने जहन में सबसे पहले ये फोकस करना है कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व, एंड देन बेस्ड अपॉन माय understanding and based upon the information that I've gathered, what is the best tool to solve it। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं जी, रिएक्ट सीख ली है, अब हर चीज रिएक्ट में बनाना शुरू कर दी। ये नहीं सोचा कि रिएक्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे दुनिया के सारे मसले सॉल्व होंगे। ठीक है, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, एनेक्डोट देता हूँ कि ये जो आपने ASP.NET अगर लोगों ने पढ़ी हो, और उसके अंदर वो एक रेजर सिंटैक्स है जिसके अंदर आप वो अ, जब पुरानी ASP थी ना, 2000 में जब मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की, तो उसके अंदर HTML और जो क्या नाम है, डॉट नेट का सिंटैक्स है ना, वो मर्ज करके लिखा जाता था। सॉरी, विजुअल बेसिक एक ही पेज के अंदर। और फिर ASP.NET लाई, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, पूरी दुनिया ने कहा, यार दिस इज गोइंग टू बी द ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन। ये जो टूल है ना, अब ये बेस्ट है। ओनली टू रियलाइज कि यार नहीं, वो जो पुरानी अप्रोच थी ना, वो ही ठीक थी। सो जो 20 सालों के बाद उन्होंने फिर दोबारा उसी अप्रोच पे, नहीं यार ऐसा करते हैं, HTML के साथ टैग लगाते हैं, वो आसान काम था। राइट, तो जितने भी टूल्स हैं और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, आज सॉलिडिटी है, जावास्क्रिप्ट है, टाइपस्क्रिप्ट, राइट, नन ऑफ दैट रियली मैटर्स। इतनी इतने, क्या कहना चाहिए, अब तो आपका को पायलट्स आपको कोड लिख देते हैं यार। ठीक है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। हाँ, आप मेरे से सॉलिडिटी का कोई क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आंसर करूंगा। मेरे से जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आंसर करूंगा। पाइथन का करेंगे, मैं करूंगा। बट आई विल नॉट रिकमेंड एनी टूल। मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि जी आपने इन एरियाज के ऊपर फोकस करना है, ताकि ये जो है अ, ये जो एरियाज हैं यूज केसेस के, ठीक है, उसके ऊपर आप मेरे से डिस्कशन करें कि यार हमने लेट्स सपोज फूड सेफ्टी की ट्रैकिंग की ऐप बनानी है। ठीक है, और अगर आप मुझे कहते हैं ना कि यार मुझे पाइथन आती है, मैंने बैकएंड पे काम किया, तो मैं उसको कहूंगा अच्छा, उसका बैकएंड जो आप पाइथन में बना लो, फ्रंट एंड जो है ना वो सिंपल जावास्क्रिप्ट में बना लो। आप कहोगे नहीं यार मुझे जावास्क्रिप्ट तो नहीं आती, मैं कहूंगा अच्छा यार टाइपस्क्रिप्ट में बना लो। राइट, आप कहोगे नहीं यार मुझे दोनों नहीं आती, मैं कहूंगा अच्छा ठीक, ऐसा करो, आप मोबाइल उसमें बना लो, एंड्रॉइड ऐप बना लो, ऑब्जेक्टिव सी वगैरह में, या जो भी उसकी लैंग्वेज है, स्विफ्ट वगैरह। राइट, तो फॉर मी, project, the idea, the problem that you are trying to solve, try to be a problem solver, never try to be a tool expert। I hope I've emphasized this very strongly। जी सर, अनदर क्वेश्चन कि ब्लॉकचेन डेवलपर के करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है और क्या स्कोप होगा। यार सच्ची बात है, बहुत है। अगर आप ऑनलाइन देखें अपवर्क वगैरह के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस लेवल, एनीवेयर बिटवीन $5 पर आवर पे भी काम मिल जाता है, $100 पर आवर पे भी काम मिल जाता है। आपको अगर काम आता है ना, इफ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज आर अबंडेंट। मैं फिर ये कहूंगा, ट्राई टू बी एन इंजीनियर, ट्राई नॉट टू बी अ ब्लॉकचेन डेवलपर। ठीक है,
अगर आपका इंजीनियरिंग माइंडसेट है, आप फूड सेफ्टी की ट्रैकिंग ऐप को एज एन इंजीनियर अप्रोच करोगे तो उसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट भी आएगी। ब्लॉकचेन तो उसका एक छोटा सा पार्ट होगा, ब्लॉकचेन विल प्रॉब्ली ओनली बी 10% ऑफ इट। ठीक है। Sir, is it a group-based project or a solo activity? यार आई एम थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज आपकी यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में हमने भी ऐसे ही किया था। ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट में ना एक बंदा करता है काम, बाकी तीन जो है ना उसकी कमाई खाते हैं। आई वुड नॉट वांट टू डू दैट। आपके पास प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, एंड लेट मी रिपीट दैट, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आपने अगर एक प्रोजेक्ट लिया, बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट भी हो सकता है वो प्रोजेक्ट अगर मैं करूँ तो मैं 2 दिन में कर लूँ, इतना सिंपल हो, but it has to be an end-to-end implementation. That is the only thing we will be looking at. हम again let me repeat, मैं कोई बहुत आपसे ये नहीं चाहूंगा कि आप कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कम्प्लेक्स किस्म का आर्किटेक्चर खड़ा करें। इट कुड बी अ वेरी सिंपल थिंग, लेकिन उसको एंड टू एंड इम्प्लीमेंट करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और वो यूज केस एंड टू एंड कंप्लीट हो। Just sir, I have a sort of technical question. We discussed the blockchain trilemma, and someone is asking कि उसका solution क्या है? सोल्यूशन, हाँ सोल्यूशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा हम एडवांस टॉपिक्स में जा रहे हैं, बट इथेरियम ने बहुत कोशिश की कि यार डिसेंट्रलाइजेशन को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर स्केलेबिलिटी ले आए, तो वो नहीं ला सके। तो अब उन्होंने क्या किया है, आपने शायद नाम सुना हो अगर आप फॉलो करते हैं, तो द ग्रेट मर्ज विच हैपेंड। तो चूंकि ये सारे ओपन सोर्स हैं, तो ओपन सोर्स कम्युनिटीज के अंदर ना बहुत सारे फोक्स होते हैं। एक प्रोजेक्ट के आइडिया को आप एक तरीके से चला रहे हो, दूसरा बंदा दूसरे तरीके से चला रहा है। तो जो इथेरियम की मेन कम्युनिटी है, व्हाट दे डिसाइडेड इज कि वो एक फेज्ड अप्रोच लेके चलेंगे। उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन को कॉम्प्रोमाइज किया है बाय मूविंग फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। अब ये मैं नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये कंसेंसस एल्गोरिथम्स है। कंसेंसस एल्गोरिथम्स हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए, ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, दोबारा कर लेंगे। बट आई एम सेइंग इज के इथेरियम का प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे मूव होने का रीजन ही ये था, बिकॉज दे वांटेड टू अटेन मोर स्केलेबिलिटी एट द एक्सपेंस ऑफ सम डिसेंट्रलाइजेशन। और उसके अंदर फिर वो शार्डिंग लेके आए हैं। अगेन शार्डिंग भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि डेटाबेसेस में, जो आप में से एक्सपीरियंस लोग हैं उन्होंने सुना होगा, ऐसी नहीं है कोई चीज की जो कि ब्लॉकचेन स्पेसिफिक है। शार्डिंग डेटाबेसेस में आप करते हैं, हॉरिजॉन्टल शार्डिंग वगैरह, राइट। तो इट इज, जब भी कोई प्लेटफॉर्म आता है ना, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये आपको समझने की जरूरत है। ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी इज स्टिल इवॉल्विंग। ये जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं कि ट्रेवल लेमा को फिक्स करने के लिए देर आर कम्युनिटीज जो कि पिछले कई सालों से इस पे काम कर रही हैं। आप ये इथेरियम की वेबसाइट पे अगर जाएंगे, उनका वाइट पेपर पढ़ेंगे, तो ये चूंकि एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं इसलिए मैंने नहीं टच किया, बट उनमें सारा दिन यही बहस होती रहती है कि यार अगर हम ये इस चीज को छेड़ेंगे तो ये खराब होगी, अगर इस चीज को छेड़ेंगे तो ये खराब होगी। ठीक है। Thank you, प्रूफ ऑफ sir. वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, मैं जानबूझ के इसका जिक्र नहीं किया बिकॉज मैं नहीं चाहता कि जिनको बैकग्राउंड नहीं है वो इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर घुसे हैं अभी। मैं ये चाहता हूँ कि जब हम बूट कैंप स्टार्ट करें तो हम हैंड्स ऑन कोडिंग से स्टार्ट करें, फिर एडवांस टॉपिक्स पे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि हमने अभी तक जो टाइम कम्युनिकेट किया है वो है 5 PM फॉर वेनसडे एंड फ्राइडे। सर्दियां आ गई हैं और चूंकि नमाज का भी टाइम होता है, तो आई थिंक वी विल हैव टू change the timing to be 4 p.m. What we will do is we will create a poll. मुताहिर, बल्कि अगर आप एक ये डिस्कशन के अंदर ना यहाँ पर एक पोल क्रिएट कर दें विद मल्टीपल टाइमिंग ऑप्शंस, और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड टू दैट पोल, ताकि आप लोगों का जो भी टाइम कन्वीनियंट हो हम उस पर सेशन स्टार्ट करें। एक दो हफ्ते में अभी दुबई में होऊंगा, सो आई विल नॉट बी एबल टू डू एनी सेशन ऑन द नाइट, बट नाइट इज ऑल्सो ऑप्शन। अगर आप लोगों के पास ज्यादा वोट्स आते हैं कि जी हम शाम को या रात को कर लें, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। ठीक है।
चलें जी, if there is no more questions, then sir, little bit awareness about this is what career. अच्छा, okay. जी, फरफुरा ने पूछा है गाइडलाइन। जी बिल्कुल गाइडलाइन मिलेंगी आपको। जस्ट वेट फॉर इट। स्लोली बट श्योरली, पीसमील अप्रोच से सारा कुछ एक प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच लेके चलेंगे इंशाल्लाह। नहीं जी, ग्रुप बेस्ड नहीं है। अच्छा जी। जी, उबैद सफ़ी ने डिंकन अपडेट के बारे में जिक्र किया है। आई वुड रिक्वेस्ट के जितने भी कोई एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर किसी ने डिस्कस करने हैं तो ये जो हमारा पोर्टल है उसमें ये डिस्कशन वाला सेक्शन है। इसके अंदर अपने क्वेश्चंस या अपने कमेंट्स या अगर आप कोई चीज़ भी शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री। अगेन इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव। ऐसा नहीं है कि मैं आपका टीचर हूं तो मैंने जो बात कहनी है वही लोग सुने। फील फ्री टू शेयर एनीथिंग दैट यू गाइस वांट। ठीक है जी। So I think we will conclude this and then we will do a poll on the timings Friday onwards, and then again we will adjust the timings based upon whatever we agree. सही है जी। So looking forward, make sure you are ready to code. Visual Studio Code आपके पास होना चाहिए, आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल होना चाहिए। हम पहले सेशन में तो शायद कोडिंग स्टार्ट ना करें, लेकिन फ्रॉम द सेकंड सेशन ऑनवर्ड हम कोडिंग स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी। फिर shall we conclude today? चलें जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, sir. Thank you. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम।